नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। और इस वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2022-23 प्रस्तुत कर रही हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये अंतिम बजट होगा। आइए ले चलते हैं, आपको डायरेक्ट सुनते हैं जहां पर बजट चल रहा है और सीतारमण अपनी वक्ता कर रही हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के बाद अब आम बजट की बारी है। इस बजट से आम आदमी को बड़ी उम्मीदें हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री सीतारमण आज बजट पेश कर रही हैं, जिसको लेकर जनता ने काफी उम्मीदें लगा रखी हैं। And welfare of farmers, said the Honorable Prime Minister. We are the largest producer and second largest exporter of Sri Anna in the world. We grow several types of Sri Anna, such as Sri Anna Jowar, Sri Anna Ragi, Sri Anna Bajra, Sri Anna Kutu, Ramdana, Kangni, Kutni, Kutki, Kodo, China, and Sama. These have a number of health benefits and have been an integral part of our food for centuries. I acknowledge with pride the huge service done by small farmers in contributing to the health of fellow citizens by growing these Sri Anna. Now, to make India a global hub for Sri Anna, the Indian Institute of Millet Research, ideally Indian Institute of the Sri Anna Research, Hyderabad, will be supported as the center of excellence for sharing best practices, research, and technologies at the international level. The agricultural credit target will be increased to 20 lakh crores with focus on animal husbandry, dairy, and fisheries. We will launch a new sub-scheme of PM Matsya Sampada Yojana, which is an existing scheme, but we'll launch a new sub-scheme with targeted investment of 6,000 crores to further enable activities of fishermen, fish vendors, and micro and small entrepreneurs, improve value chain efficiencies, and expand the market. For farmers, especially small and marginal farmers and other marginalized sections, the government is promoting cooperative-based economic development model. A new Ministry of Cooperation was formed with a mandate to realize the vision of Sahakar Se Samriddhi. To realize this vision, the government has already initiated computerization of 63,000 primary agricultural credit societies with an investment of 2,516 crores. In consultation with all the stakeholders and the states, model bylaws for PACS were formulated, enabling them to become multi-purpose PACS. A national cooperative database is being prepared for countrywide mapping of cooperative societies. With this backdrop, we will implement a plan to set up massive decentralized storage capacity. This will help farmers store their produce and realize remunerative prices through sale at appropriate times. The government will also facilitate setting up of a large number of multi-purpose cooperative societies, primary fishery societies, and dairy cooperative societies in uncovered panchayat and villages in the next 5 years. Health, education, and skilling. 157 new nursing colleges will be established in co-location
in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014. A mission to eliminate sickle cell anemia by 2047 will be launched. It will entail awareness creation, universal screening of 7 crore people in the age group of 0 to 40 years in affected tribal areas, and counseling through collaborative efforts of central ministries and state governments. Facilities in select ICMR labs, Indian Council for Medical Research labs, will be made available for research by public and private medical college faculty and private sector R&D teams for encouraging collaborative research and innovation. A new program to promote research and innovation in pharmaceuticals will be taken up through centers of excellence. We shall also encourage industry to invest in research and development in specific priority areas. Dedicated multidisciplinary courses for medical devices will be supported in existing institutions to ensure availability of skilled manpower for futuristic medical technologies, high-end manufacturing and research. Teachers' training. Teachers' training will be re-envisioned through innovative pedagogy, curriculum transaction, continuous professional development, dipstick surveys, and ICT implementation. The District Institute of Education and Training will be developed as vibrant institutes of excellence for this purpose. National Digital Library for Children and Adolescents. A National Digital Library for Children and Adolescents will be set up for facilitating availability of quality books across geographies, languages, genres, and levels, and device-agnostic accessibility. States will be encouraged to set up physical libraries for them at panchayat and ward levels and provide infrastructure for accessing the National Digital Library resources. Additionally, to build a culture of reading and to make up for pandemic time learning loss, the National Book Trust, the Children's Book Trust, and other sources will be encouraged to provide and replenish non-curricular titles in regional languages and in English to these physical libraries. Collaboration with NGOs that work in literacy will also be a part of this initiative to inculcate financial literacy. Financial sector regulators and organizations will be encouraged to provide age-appropriate reading material to these libraries. I move to priority 2, reaching the last mile. Prime Minister Vajpayee's government had formed the Ministry of Tribal Affairs and the Department of Development of Northeast Region to provide a sharper focus to the objective of reaching the last mile. Our government has formed the Ministries of Ayush, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Skill Development, Jal Shakti and Cooperation. Building on the success of the Aspirational Districts program, the government has recently launched the Aspirational Blocks program, covering 500 blocks for saturation of essential government services across multiple domains such as health, nutrition, education, agriculture, water resources, financial inclusion,
skill development, and basic infrastructure. Manya Speaker, Sir, Pradhan Mantri PVTG, which is Primitive Vulnerable Tribal Groups Development Mission, is being launched. To improve socio-economic conditions of the particularly vulnerable tribal groups, the PVTGs as we refer them to, Pradhan Mantri PVTG Development Mission will be launched. This will saturate PVTG families and habitations with basic facilities such as safe housing, clean drinking water and sanitation, improved access to education, health, nutrition, road and telecom connectivity, and sustainable livelihood opportunities. An amount of 15,000 crores will be made available to implement the mission in the next 3 years under the Development Action Plan for the Scheduled Tribes. Ekalavya Model Residential Schools. In the next 3 years, Center will recruit 38,800 teachers and support staff for the 740 Ekalavya Model Residential Schools, which is serving 3.5 lakh tribal students. In the drought-prone central regions of Karnataka, central assistance of 5,300 crore will be given to Upper Bhadra project to provide sustainable micro-irrigation and filling up of surface tanks for drinking water. PM Awas Yojana. The outlay for PM Awas Yojana is being enhanced by 66% to over 79,000 crores. Bharat Shared Repository of Inscriptions will be set up in a digital epigraphy museum with digitization of 1 lakh ancient inscriptions in the first stage. Support for poor prisoners. For poor persons who are in prisons and unable to afford the penalty or the bail amount, required financial support will be provided. Priority number 3, infrastructure and investment. Investments in infrastructure and productive capacity have a large multiplier impact on growth and employment. After the subdued period of the pandemic, private investments are growing again. The budget takes the lead once again to ramp up the virtuous cycle of investment and job creation. Honorable Speaker, sir, the capital investment outlay is being increased steeply for the 3rd year in a row by 33% to 10 lakh crores, which would be which would be 3.3% of GDP. This will almost be 3 times the outlay made in 2019-20. This substantial increase in recent years is central to the government's efforts to enhance growth potential and job creation, crowd in private investments, and provide a cushion against global headwinds. The direct capital investment by the center is complemented by the provision made for creation of capital assets through grants and aids to state. The effective capital expenditure of the center is budgeted at 13.7 lakh crore rupees
which will be 4.5% of GDP. Support to state governments for capital investment. I have decided to continue the 50-year interest-free loan to state governments for one more year to spur investment in infrastructure and to incentivize them for complementary policies actions with a significantly enhanced outlay of 1.3 lakh crores. The newly established Infrastructure Finance Secretariat will assist all stakeholders for more private investment in infrastructure, including railways, roads, urban infrastructure and power, which are predominantly depend on public resources. The harmonized master list of infrastructure will be reviewed by an expert committee for recommending the classification and financing framework suitable for Amartkal. A capital outlay, I'm talking about railways now, sir, Honorable Speaker, railways. A capital outlay of 2.40 lakh crores has been provided for the railways. This is the highest ever outlay this highest ever outlay is about 9 times the outlay made in 2013-14. 100 critical transport infrastructure projects for last and first mile connectivity for ports, coal, steel, fertilizer and food grain sectors have been identified. They will be taken up on priority with investment of 75,000 crores, including 15,000 crore from private sources. 50 additional airports, heliports, water aerodromes, and advanced landing grounds will be revived for improving regional air connectivity. Sustainable cities for tomorrow. States and cities will be encouraged to undertake urban planning reforms and actions to transform our cities into sustainable cities of tomorrow. This निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि ये बजट इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है, इसलिए मोदी सरकार इस वक्त जनता को साधने का पूरा प्रयास कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजधानी भोपाल से सीनियर रिपोर्टर अभय मरकले जुड़ गए हैं। उनसे जानते हैं क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं जनता की और किस तरह से देख रहे हैं बजट को। अभय, देखिए आयुषी, अगर मैं बात करूं तो 9 राज्यों में विधानसभा और अगले साल जो है आम चुनाव होने हैं लोकसभा के, उसको ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया जा रहा है। गरीबों को विशेष तौर पे फोकस किया गया है और हमने राजधानी में नब्ज टटोलने की कोशिश करी। लोगों को इंतजार है कि जैसे जैसे बजट भाषण वित्त मंत्री का आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों के मन में ये जानने की उत्सुकता बढ़ रही है कि आखिर उनके हित में क्या आएगा। हमारे साथ राजधानी के काफी सीनियर जुड़े, उनसे बात करें। क्या लगता है सर, किस रूप में देख रहे हैं इस बजट को आप? मैं तो मेरे हिसाब से मैं सीनियर सिटीजन हूँ, तो बीजेपी ने बोला भी था कि जो बुजुर्ग हैं उनको इन्वॉल्व करेंगे और उनको उनकी सहायता करेंगे। तो मेरा ये सजेशन था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो है, जो प्रोविजन है, उसमें बुजुर्गों का इन्वॉल्वमेंट किया जाए, उनके लिए कुछ प्रावधान किया जाए, जिससे उनकी जैसे पेंशन भी ले रहे हैं, तो पेंशन के अलावा भी उनकी कोई कमाई हो, और जो जिनकी कोई कमाई नहीं है बुजुर्गों की, वो उसमें अपनी जो नॉलेज है बच्चों को देंगे और उसके बदले में उनको कुछ कमाई हो जाएगी। तो जो अभी एजुकेशन, जो शिक्षा में जो कमियां है ना, वो अगर आप बुजुर्गों को, हम जैसे बुजुर्गों इस्तेमाल करें, जो हम एक्चुअली रिटायर्ड है, इंजीनियर हूँ मैं, और मैं काफ़ी कुछ बच्चों को बता सकता हूँ, दे सकता हूँ, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है अभी प्लेटफॉर्म जहाँ शिक्षा में जो हम ट्रांसफ़र दे सकते हैं, इंटर जनरेशनल, मतलब एक जनरेशन से दूसरी से तीसरी जनरेशन में जो हम नॉलेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक्सपीरियंस, वो उसका कोई एक वो नहीं है प्रोविजन। तो वो हमने उसके बारे में सोचा हुआ है, अगर सरकार इसमें सुने तो हम उसकी डिटेल दे सकते हैं कि
कैसे वो बुजुर्गों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनकी जो 2-3 समस्याएं शिक्षा की और दूसरी सारी समस्याएं भी हल हो सकती है। तो शिक्षा की शिक्षा हो जाएगी, बुजुर्गों का भी इस्तेमाल हो जाएगा, जैसा बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि वो बुजुर्गों को इन्वॉल्व करेंगे। दूसरा, उन लोग कुछ तो कमाई हो जाएगी इस महंगाई के ज़माने में, और जो बहुत सारा खर्च फालतू का शिक्षा में होता है, वो बचेगा और ये बुजुर्गों का इस्तेमाल हो जाएगा। तो देख सकते हैं बायरची, साफ तौर पर ये कहना है कि जो सरकार खर्च करती है उसका सही उपयोग हो, सदुपयोग हो, और उसका लाभ जो है, जो बुजुर्गों का जो अनुभव का लाभ है, वो उनको मिल सके कम खर्चों में। चूंकि आप देखेंगे लगातार जो कार्यक्रम होते हैं, लगातार जो आयोजन होते हैं, जी। उसमें एक बड़े पैमाने पर खर्च होता है। तो जनता का भी कहीं ना कहीं ये सोचना है कि खर्च कम से कम हो और उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो। इस बात को लेकर हमारे साथ एक पुजारी जी भी जुड़े हैं, हम इनसे भी जानेंगे क्या राय। पुजारी जी, केंद्र सरकार का बजट पेश हो रहा है, क्या उम्मीद है आपको, क्या लगता है? केंद्र सरकार का बजट पेश हो रहा है, महंगाई कम करे। महंगाई सबसे बड़ी समस्या है। पेट्रोल है, डीजल है, और खाने पीने की चीजें बहुत महंगी होती जा रही है। गरीब जनता परेशान है। आप चूंकि एक धार्मिक संस्थान से जुड़े हैं, लोग बाग आते होंगे, क्या लगता है आपको, क्या अंतर है अमीर और गरीब के बीच में? आज तो महंगाई सबसे बड़ी समस्या है, यही अंतर है। महंगाई को कम करें, ये बहुत बड़ी चुनौती है। महंगाई से सब महंगाई मुख्य मुद्दा निकल कर आ रहा है इस बजट का सामने से, क्योंकि महंगाई लगातार जो है आसमान छू रही है। दैनिक रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो लगातार महंगी होती जा रही। इसको लेकर जनता की सिर्फ एक ही मांग है कि कहीं ना कहीं महंगाई रोजमर्रा की वस्तु में कम होना चाहिए। गैस, पेट्रोल, डीजल, और इसके अलावा अगर आप बात करेंगे कि घरेलू खाद्यान्न सामग्री जैसे तेल हुआ या तमाम तरीके की इस तरीके की सामग्री, उसमें महंगाई कम होनी चाहिए। आयुषी, बिल्कुल। अगर बात की जाए अब है तो साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है मध्य प्रदेश में। ऐसे में रेल सेक्टर की बात करें, कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, तो कौन सी सौगातें मध्य प्रदेश को इस बजट में मिल सकती हैं? देखिए लगातार जो है केंद्रीय वित्त मंत्री का भाषण चल रहा है और बता रही हैं कि जो है रेल हो चाहे हवाई कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है और लगातार इस दिशा में काम किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि एक मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि 9 राज्यों में चुनाव होने, तो कहीं ना कहीं पूरे सभी राज्यों को कनेक्टिविटी के माध्यम से या तमाम तरीके की वहां की जो आवश्यकताएं हैं, जो जरूरत है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग समस्याएं होती है। कहीं पानी कम है तो कहीं बाढ़ की स्थिति बन जाती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के भी जो है मोदी सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि राज्य जो है उनकी आवश्यकताओं के अनुसार घोषणा की जाए, क्योंकि 9 राज्य बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव भी है। 9 राज्यों की जो लोकसभा सीटें हैं उसी से केंद्र सरकार में कहीं ना कहीं केंद्र में सरकार बनाने में बीजेपी को मदद मिलेगी। इन 9 राज्यों को फोकस रख के जो है काम किया जा रहा है बजट में। हम्म। लगातार केंद्रीय वित्त मंत्री बता रही है किस तरीके से क्या क्या कहाँ कहाँ सौगातें दी जा रही है। जय। बिल्कुल। अब है अगर बात की जाए वित्त मंत्री सीतारमण की, तो उन्होंने बड़ी घोषणा, बड़ा ऐलान कर दिया है। कृषि ऋण की अगर हम बात करें, उसको बढ़ा दिया गया है। जी, हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं राजधानी के। सरकार ने जो है खेती के लिए दिए जाने वाले कर्ज की राशि बढ़ा दी है, आप किस रूप में देखते कर्ज की राशि तो बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि किसानों को मौसम की मार हमेशा लगती है, तो उनके भविष्य के लिए उनको सुविधा मिलना ही चाहिए। हैं? और क्या उम्मीद रखते हैं आप बजट से? बजट में पेट्रोल, डीजल और गैस के रेट कम होना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त जो दूध के रेट बढ़ रहे हैं, बाकी प्रोडक्टों के रेट बढ़ रहे हैं, उस पर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि महंगाई आवश्यकता से अधिक बढ़ रही है। उस हिसाब से सैलरी और जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो कम होता जाए। आप देख सकते हैं आयुषी, साफ तौर पे जो दैनिक उपयोग की चीजें हैं उसमें कमी करने की मांग हर वर्ग कर रहा है। मतलब देश की जनता की सिर्फ एक ही मांग है कि जो दैनिक उपयोग में आने वाली चीजें हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी होना चाहिए। और अगर बात की जाए तो सरकार की भी अपनी मजबूरी होती है, क्योंकि आय और व्यय का ब्यौरा होता है बजट। सरकार को पहले इस बात का अनुमान लाया कि उसको कहाँ से
किस मद से कितनी आय हो रही है। आप समझ सकते हैं कि दैनिक उपयोग की वस्तुओं से ही आय होती है और उसी का एक बड़ा जो राशि है, बड़ा जो हिस्सा है, वो बजट में अन्य मदों में जो है खर्च किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें तो फिलहाल तो हमने जितने भी लोगों से बात की उनका साफ तौर पे कहना है कि दैनिक रोजमर्रा की चीजों में जो महंगाई का जो असर है वो कम दिखता है, तो उनको राहत मिलेगी। आयुषी बिल्कुल। अभय, महंगाई की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल समेत अन्य तरह की जो सामग्रियां हैं उसकी कीमतें काफ़ी कम है, लेकिन उसके बावजूद महंगाई जो है वो कम नहीं हो पा रही है। इस बार के बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं? आम जनता की बात की जाए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए या फिर हम IT सेक्टर की बात की जाए, दोनों ही सेक्टर में काफ़ी उम्मीदें नजर आ रही हैं इस बार। देखिए हर्षित, मैंने आपको जिस तरीके से बताया, आय और व्यय का ब्यौरा होता है बजट, तो सरकार को सबसे पहले ये तय करना होता है कि किस मद से उसको कितनी आय हो रही है और उसका कितना हिस्सा जो है वो आर्थिक प्रगति हो, या इसके अलावा आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, या फिर रक्षा हो, सेना हो, पुलिस हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इन तमाम मुद्दों पे कितना खर्च करना है। तो ये कैलकुलेशन ही बजट कहलाता है, ये पूरा ब्यौरा ही बजट कहलाता है। लेकिन समस्या यहाँ पर यह आ जाती है कि जो आय है वो दैनिक उपयोग क्रूड ऑयल वगैरह की अगर अपन बात करते हैं तो वो एक सिर्फ एक क्षेत्र को प्रभावित करती है। लेकिन अगर हम बात करें दूध है, पेट्रोल है, गैस है, तेल है, या दाल है, या चावल है, या अनाज की जो चीजें हैं, ये महंगी होती है तो इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। आम जनता को इस बात से, देखिए सभी को ये इच्छा है कि देश की रक्षा हो, देश आगे बढ़े, सारी चीज हो, लेकिन उसका बलिदान सिर्फ मध्यम वर्गीय क्यों दे, ये प्रश्न कहीं ना कहीं जनता के मन में लगातार उठता है। और लगातार जनता ये चाहती है कि अगर देश का विकास हो, देश की रक्षा हो, युवा जो है शिक्षित हो, बेरोजगारी ना हो, तमाम तरीके की सुविधा हो, लेकिन जनता का साफ तौर पे कहना है इसकी कीमत सिर्फ मध्यम वर्गीय क्यों चुकाए। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जनता के मन में सवाल पैदा होता है। आयुषी वहीं अभी मैं हेलो। जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार सरकार और किसानों के बीच भेदभाव, आप विरोध चल रहा था, तो कहीं ना कहीं इस बजट में किसानों के लिए ऐसी क्या तैयारियां सरकार के द्वारा की गई हैं कि किसानों को राहत मिल सकेगी? देखिए जैसे बताया गया है अभी कि किसान ऋण बढ़ा दिया गया। अब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसानों का ऋण की सीमा बढ़ा दी गई है, लेकिन ऋण तो फिर भी उनको लेना पड़ेगा, ऋण लेकर ही उनको काम करना पड़ेगा। और यदि, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार मौसम में, क्लाइमेट में बदलाव आ रहा है जिसका असर सीधे तौर पर फसल पे पड़ता है, और किसान की आय का साधन सिर्फ फसल है। ऋण किसान लेता है और फसल यदि बर्बाद हो जाती है तो वो ऋण कहाँ से चुकाएगा। ऐसी स्थिति में सरकार मुआवजा देने की बात करती है, किंतु कहीं ना कहीं किसान भी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है। उसे एक संपूर्ण गिनती चाहिए कि अगर हमारा नुकसान की भरपाई कैसे होगी, ऋण हम लेते तो कैसे अदायगी की जाएगी। इस बात को लेकर किसान में आक्रोश है और किसान लगातार इस बात को लेके तमाम राज्यों की राजधानी से लेके तो देश की राजधानी दिल्ली तक प्रदर्शन कर चुके हैं। और ये उन्नंग है कि किसानों को साफ तौर पर कहना है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, तो किसानों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्राथमिकता सरकार ने देने का प्रयास जरूर किया, लेकिन पूरी तरीके से किसान इससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। जी विशाल। चलिए, तो आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे अभय, हमारे साथ बने रहिएगा। सीधा रुक करेंगे लोकसभा की ओर। भाषण चल रहा है इस वक्त, वित्त मंत्री सीतारमन क्या कुछ घोषणाएं कर रही हैं, आपको सुनवाते हैं। जी। India is moving forward firmly for the Panchamrit, the net zero carbon emission by 2070, to usher in green industrial and economic transition. This budget builds on our focus on green growth. The recently launched National Green Hydrogen Mission, with an outlay of 19,700 crores, will facilitate transition of the economy to low carbon intensity, reduce dependence on fossil fuel imports, and make the country assume technology and market leadership in this sunrise sector. Our target is to reach an annual production of 5 MMT by 2030. Energy transition. This budget provides for
35,000 crores for priority capital investment towards energy transition and net zero objectives and energy security by Ministry of Petroleum and Natural Gas. To steer the economy on sustainable development path, battery energy storage systems with capacity of 4,000 MWH will be supported with viability gap funding. A detailed framework for pumped storage projects will also be formulated. Renewable energy evacuation. The interstate transmission system for evacuation and grid integration of 13 gigawatt renewable energy from Ladakh will be constructed with investment of 20,700 crore, including central support of 8,300 crores. Green Credit Program. For encouraging behavioral change, a green credit program will be notified under the Environment Protection Act. This will incentivize environmentally sustainable and responsive actions by companies, individuals, and local bodies, and help mobilize additional resources for such activities. PM Program for Restoration, Awareness, Nourishment, and Amelioration of Mother Earth, PM Pranam, will be launched to incentivize states and union territories to promote alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizers. Go Bardhan Scheme. 500 new waste to wealth plants under Go Bardhan, galvanizing organic bio-agro resources done. Go Bardhan scheme will be established for promoting circular economy. These will include 200 compressed biogas plants, including 75 plants in urban areas, and 300 community or cluster-based plants at a total investment of 10,000 crores. I will refer to this in Part B also. In due course, a 5% CBG mandate will be introduced for all organizations marketing natural and biogas. For collection of biomass and distribution of biomanure, appropriate fiscal support will also be provided. Bharatiya Prakritik Kheti Bio Input Resource Centers. Over the next 3 years, we will facilitate 1 crore farmers to adopt natural farming. For this, Honorable Speaker, 10,000 bio input resource centers will be set up, creating a national level distributed micro fertilizer and pesticide manufacturing network. Mishti. Building on India's success in afforestation, mangrove initiative for shoreline habitats and tangible incomes, Mishti, will be taken up for mangrove plantation along the coastline and on salt pan lands wherever feasible through convergence between Manrega, Campa, Fund and other sources. Amrit Dharohar. Wetlands are vital ecosystems which sustain biological diversity. In his latest Mann Ki Baat, the Prime Minister said, now, I quote, now the total number of Ram. तो आपको बता दें कि तस्वीरें दिल्ली से थी, जहां पर संसद में आपको बता दें कि वित्त मंत्री अपना बजट पेश कर रही हैं। आपको बता दें कि आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां पर छत्तीसगढ़ स्टेट हेड सचिन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि ज़्यादा जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सचिन, जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी, कहीं ना कहीं बजट को लेकर कई सवाल जवाब किए जा रहे थे और कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा था
कि बजट जो है किसानों पर ज़्यादा ध्यान देगा, उसके अलावा जिस तरीके से कोरोना काल के बाद व्यापारी और कारोबारियों को जो भारी नुकसान हुआ था, तो क्या कुछ तैयारी रहेगी कि आगामी चुनाव को देखा जाए तो कहीं ना कहीं चुनाव को लोभ के लिए कहीं ना कहीं सरकार अपनी तरफ इस तरीके से बजट तैयार कर रही है पेश, कहीं ना कहीं कारोबारी को इससे क्या सीधे सीधे तौर पर फायदा मिल सकता है? देखिए सर, मैं सबसे पहले इस पे ये बताऊंगा कि ये महत्वपूर्ण क्यों है ये बजट हमारे देश के लिए और प्रदेश के लिए भी, क्योंकि इसे आगामी इस साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अलग अलग 10 राज्यों में चुनाव है, तो देश में बहुत बड़ा महत्व रखेंगे इन चीजों को, और बजट को देखते हुए जनता भी रुझान उधर दिखाएगी। दूसरी बात रही लोकसभा चुनाव की, तो 2024 में मतलब नेक्स्ट ईयर चुनाव है। अब नेक्स्ट ईयर लोकसभा चुनाव है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देखने वाली होंगी कि अभी का जो बजट है जनता पे क्या प्रभाव डाल रहा है, क्या किन चीजों पे सरकार काम करेगी और किन चीजों पे काम नहीं करेगी। तो अभी जो बजट पेश कर रही हैं सीतारमन जी, उसमें साफ तौर से नजर आ रहा है कि वो किसानों को लेके, यूथ को लेके और सारी चीजों पे, अलग अलग चीजों पे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है अगर वो इस बजट में, पहली बात तो उन्होंने आते ही इन चीजों को साफ कर दिया था कि ये पिछले बजट का ब्लूप्रिंट के रूप में ही इसको हम पेश कर रहे हैं। और दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण बात है, अगर कोई सरकार जेल जेल में बंद हम्म। कैदियों पर भी ध्यान दे रहा है, तो आम जनता पे कहीं ना कहीं उसका ज्यादा फोकस होगा ही, क्योंकि सीतारमन ने अपने भाषण में भी कुछ देर पहले ही इन चीजों को विवरण किया है कि किस तरीके से ये पूरा कैदियों को लेकर की जो जमानत नहीं दे पाते हैं, सरकार उनकी मदद करेगी और उन कैदियों को रिहाई भी मिलेगी। तो इसके अलावा आम जनता, कृषि की बात करूं मैं, तो कृषि में भी इन्होंने योगदान का बताया कि जो नए युवा पीढ़ी है और नए लोग हैं, अगर वो नए कृषि प्रणाली में घुसते हैं और उस पर काम करते हैं, और सरकार उनकी मदद भी करेगी और उनको सम्मानित भी करेगी। उसके अलावा कृषि विभाग की बात करूंगा या प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूंगा, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी 66% प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री बिल्कुल। आवास योजना पूरे भारत में चल रही है, अलग अलग स्टेट में चल रही है। छत्तीसगढ़ में भी जोरों से इसका देखने को मिला है कि लोगों को किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिल रहा है, जिनके पास घर नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी महत्वता बता रही है और ये सारी चीजें क्लियर कर रही है कि हम इस बजट में आम जनता को भी राहत देंगे। अभी देखने वाली बात है कि अभी कई चीजों पे उन्होंने बात बोल दिया है, मगर कई चीजें उनकी अभी बोलना बाकी है। तो अभी हम बात करेंगे, कुछ हमारे साथ लोग भी जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले इस बजट में आप लोग क्या देखना चाह रहे हैं और कैसा प्रारूप होना चाहिए? और इसमें जो है सबसे पहले तो किसानों का, स्टूडेंट्स का और व्यापारी वर्ग का ज्यादा ख्याल रखा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सुन इस पा रहे हैं? सचिन, मैं चाहूंगी कि आप अपना फ्रेम सेट कर ले, क्योंकि हमारे दर्शक आपको पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि एक बार आप अपना फ्रेम जरूर सेट कर लीजिए। होंगे तो किसानों से, तो उससे आम जनता को उससे फायदा हो सकता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। देखिए, आवास योजना को भी लेकर कहीं ना कहीं सरकार ने 66% की बढ़ोतरी दिखाई है। तो इस आवास योजना को लेके जो ग्रामीण लोग जिनको फायदा नहीं मिला है, उनको भी कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। फायदा मिलेगा, मगर सिस्टम ही इतना खराब है। आज भी अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा गरीबों को तो मिल ही नहीं पाया है जिनको मिलना चाहिए था। अब आने वाले समय में अगर गवर्नमेंट सही तरीके से अगर डिस्ट्रीब्यूट करे तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में किसी के पास मकान नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। सबके पास अपने पास अपना खुद का मकान होगा। बट अगर हम बात करें, अगर सबसे महत्वपूर्ण बात है जो महंगाई की बात है, तो महंगाई जो घर पे आने वाले सामान है, गैस सिलेंडर, उस पे भी लगातार रेट बढ़े हैं और सारी चीजें देखने को मिली है कि बीच बीच में लोग सड़क पे भी उतरे इन सारी चीजों के लिए। मैं इस एक बात पे तो मैं मतलब पूरा ही विरोध करता हूँ कि महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी नहीं है, लोगों की उसके साथ तनख्वाह भी तो बढ़ी है। आप उस चीज को क्यों नहीं देख रहे हैं? तनखे के साथ में अगर किसी जमाने में अगर ₹1.25 पेट्रोल था तो आज ₹100 ही हुआ है ना।
आज से 50 साल पहले 1.25 रुपए पेट्रोल था, आज 100 रुपए। उस समय तनख्वाह कितनी होती थी? 50 रुपए, 40 रुपए। और आज कितनी है? 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख है। तो आप जब अपनी सुविधाएं बढ़ाते जा रहे हैं, लग्जरीज बढ़ा रहे हैं, सुविधा नहीं लग्जरीज बढ़ा रहे हैं, तो नेचुरल है कि आपका बजट अपने आप ही गड़बड़ा जाएगा, है ना? तो आपके एक घर में 5-5, 6-6 गाड़ियां, 2-2, 4-4 मोबाइल, एक आदमी 4 मोबाइल यूज करता है, तो आपने अपनी लग्जरी बढ़ाई है, तो आप महंगाई अपने साथ बढ़ाए है ना, गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाया है। आप अपना बजट अपने हिसाब से बनाते तो हो सकता था कि वो सही रहे, इसलिए महंगाई नहीं बढ़ी है। मैं यूथ की बात करूंगा, जो ये हमारे यूथ हैं जो बेरोजगार हैं, उनकी भी मैं बात करूंगा कि बेरोजगारी दर भी तो यहाँ पे घटी है, क्योंकि महंगाई अगर महंगाई की बात कर रहे थे कि महंगाई नहीं बढ़ी है, तो यूथ की बेरोजगारी बढ़ी है जनसंख्या के अनुसार। नहीं, यूथ की देखिए, बेरोजगारी तो कभी नहीं थी, आज भी नहीं थी, पहले भी नहीं थी। लोग काम नहीं करना चाहते हैं या फिर वो उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है। किसी ने, बहुत बड़े नेता ने, एक अर्थशास्त्री की बात मैंने सुनी थी कभी कि जॉब्स हैं मगर उसको करने के लिए लोग नहीं है। अब आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है और आप बोलोगे कि मुझे गवर्नमेंट की ही नौकरी चाहिए, तो कहाँ से मिलेगी? और हर आदमी सिक्योर कैसे लाइफ जीना चाहता है? तो नौकरियां हैं और करने वाले नहीं है। ये बोलिए बेरोजगारी नहीं है, क्योंकि 140 करोड़ की जनता में से आप 50 करोड़ की जनता को, अब यूथ को गवर्नमेंट का जॉब दे देंगे, उनको सिक्योरिटी मिल जाएगी, तो बाकी लोग कहाँ जाएं? तो वो नहीं है। हमारे साथ कुछ यूथ भी जुड़े। बिल्कुल सचिन, जिस तरीके से हम बात करें यूथ की, तो यूथ के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है। आदिवासी विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। ऐसे में कई निजी संस्थान भी खोले जाएंगे। अगर नर्सिंग की बात करें, नर्सिंग कॉलेजों के अलावा अगर आईटी विभाग की बात की जाए, तो नए कॉलेजेस खोलने की स्कीम तैयार की है सरकार ने, और शिक्षकों की भर्ती को लेकर भी प्रारूप किया गया है तैयार। बड़े ऐलान, बड़ी घोषणा। नहीं है। तो तकनीकी खराबी की वजह से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। अगर बात की जाए देश की अर्थव्यवस्था की, तो उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को चमकता सितारा बताया है। जी हां, आदिवासी छात्रों के लिए बड़ी घोषणा की है वित्त मंत्री ने। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 3 वर्षों में सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी। इसके साथ ही 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण भी किया जाएगा। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। तो इससे साफ तौर पर लाभ मिलेगा सभी छात्रों को। And approval of IFSCA, SCZ authorities, GSTN, RBI, SEBI, and IRDAI, permitting acquisition financing by IFSC banking units of foreign banks, establishing a subsidiary of Exim Bank for trade refinancing, amending IFSCA Act for statutory provisions for arbitration, ancillary services, and avoiding dual regulation under the SCZ Act, and recognizing offshore derivative instruments as valid contracts. Honorable Speaker, sir, data embassy for countries looking for digital continuity solutions. We will facilitate setting up of their data embassies in GIFT IFSC. Improving governance and investor protection in banking sector. To improve bank governance and enhance investors' protection, certain amendments to the Banking Regulation Act, the Banking Companies Act,
and the Reserve Bank of India Act are being proposed. Capacity building in securities market. तो आपको बता दें कि तस्वीरें संसद से है, जहां पर वित्त मंत्री बजट पेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा है कि ये बजट अगले साल का ब्लूप्रिंट है। आइए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर हमारे संवाददाता राहुल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से बजट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कहीं ना कहीं कृषि में किसानों को ज्यादा फायदा मिल सके, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर करने का सरकार प्रयास कर रही है, तो क्या कुछ उत्तर प्रदेश को ऐसी खास सौगातें इस दौरान मिल सकती हैं? प्रदेश में ईशान जिस तरीके से किसानों को हित में किसानों जो बजट बढ़ा था, किसानों का जो मूल उद्देश्य किसान लेते थे उस पर जो बजट बढ़ाया था उस पर भी कोई घोषणा नहीं की है। अभी जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं, बजट बढ़ा हुआ है। मेरे साथ एक लोग बीच में जुड़े हुए हैं और उनसे बातचीत करूंगा कि जो बजट पेश किया जा रहा है आज सीतारमण जी द्वारा, क्या क्या विशेष जानकारी दी गई। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुशील सम्राट। सुशील जी, जिस तरीके से बजट आज पेश आज के दिन, उस पर क्या क्रिया आप? ये युवाओं के लिए इसमें कुछ नहीं किया गया बजट में, जबकि युवाओं को आगे आने के लिए सरकार को काम करना चाहिए, युवा विकास नीति बनानी चाहिए। जैसे युवा आजकल बेरोजगार है, काफी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में युवा बहुत परेशान है, उसको न तो कोई मौका मिल रहा है ना कोई रोजगार मिल रहा है। युवाओं की सरकार को बहुत करना चाहिए। किसानों को लेकर किसान परेशान है। देखो आप देखिए मौसम भी चेंज हो रहा है भी सर्दी में, तो इसको ध्यान में रखते हुए किसान काफी नुकसान भी उठाता है। तो किसान के हित में लेते हुए क्या विशेष रहना चाहिए बजट में? सरकार को बजट में किसानों के लिए रियायत देनी चाहिए। उनकी फसलों में जो नुकसान हुआ है बारिश से या और जो समस्या किसानों की है उन पर विशेष गौर करना चाहिए सरकार को। किसान देखिए, ऐसा जो व्यक्ति हैं उन्होंने साफ कहा है कि किसानों को देखते हुए इनको बजट में कम किसानों को कुछ ना कुछ राहत देनी चाहिए। अभी जो बजट पेश किया जा रहा है उसमें गरीब हैं, बीच के तबके लोगों को फायदा दिया है, बीच के तबके लोगों को कोई फायदा नहीं है, गरीबों को कुछ फायदा दिया है जो आवास दिए हैं। तो लोकसभा चुनाव नजदीकी है 24 में, तो उसमें देख केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं बजट में काफी चेंज करना चाहिए। और जो बजट पेश किया जा रहा है अभी पूरा बजट आने को है और मेरे साथ एक किसान जुड़े हुए हैं, एक व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम उस चीज पर चर्चा भी कर रहे हैं कि जो बजट आ रहा है तो आम जनता को हित में रखते हुए पेश किया जाए। किसान बिल्कुल। राहुल जी, अगर बात की जाए रेलवे की, तो रेलवे का काया पलट किया जाने वाला है। कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। पैन के हवाले से अगर बात करें, डिजिटल मोड में दिखाई देगी व्यवस्थाएं। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, रेलवे में सुधार हो रहा है, पर रेलवे की जो टिकट है, रेलवे आम जो एक नीचे तबके के जो लोग पैसेंजर की टिकट लेते थे उसमें भी बढ़ोतरी की गई है, सुधार हो रहा है। पर जो हमें देखिए, बीच के तबके को जो नुकसान हो रहा है, जो नीचे के तबके हैं वो उनको भी नुकसान हो रहा है। इसमें जो रेलवे की टिकट है, रेलवे की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार होना चाहिए। अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। मेरे साथ एक जो जुड़े हुए हैं व्यक्ति, उन्हीं से जानते हैं कि रेलवे की यात्रा की है तो रेलवे में कितना है। रेलवे में लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनके जो बढ़ोतरी की गई उसके लिए, क्योंकि आम जो जनमानस है वो रेल यात्रा ज्यादा करता है। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको रियायत मिलनी चाहिए। जो टिकट बढ़ा है, बेसिकली जो टिकट पे जो रेट बढ़ाए गए हैं और जो नीचे के जो गरीब लोग सफर कर लेते थे तब तक, जो पैसेंजर का टिकट है था वो एक बहुत नॉर्मल रेट में रहता था, वो उसमें बढ़ोतरी की गई है। उसमें आप क्या कहेंगे? आप उसमें ये वो कम करनी चाहिए सरकार को। बजट में भी इनको लाना चाहिए था कि जो गरीबों के लिए जो टिकट बढ़ाई गई है वो बहुत कम करने चाहिए। युवाओं शिक्षा नीति है, जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें जो जैसे बच्चों को जो छात्र हैं उनकी जो फीस बढ़ गई हैं और कोविड में नुकसान भी उठाना पड़ा, गार्जियंस कोविड में भी फीस जमा किए हैं, तो उसमें क्या शिक्षा के क्षेत्र में जो गरीब अभिभावक हैं, जो ग्रामीण जुड़े हुए हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है फीस जमा करने में। तो उनकी फीस माफ की जाए। देखिए, कहीं ना कहीं जनता में एक सीधा ये है कि कोविड में जो नुकसान उठाया है जनता ने, भारत की ने, उस पर विशेष चर्चा की गई है और उस पर कहीं ना कहीं सुधार होना चाहिए इस बार बजट को लेकर, क्योंकि चुनाव नजदीक भी है।
और भी जो चुनाव को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए सरकार को जनता के हित में काम करना चाहिए। हर राज्य चाहता है कि कम से कम महंगाई हो। बिल्कुल। वहीं कहीं ना कहीं राहुल, इस तरीके की बात भी सामने आई है बजट में कि प्रधानमंत्री की मुफ्त अन्न योजना को अगले साल तक के लिए लागू कर दिया गया है, तो उससे पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है? हेलो हेलो जी राहुल जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बदलाव किया गया है, ऐसे में आम जनता को जितनी उम्मीदें इस बजट से है उतनी ही आईटी सेक्टर्स में भी नजर आ रही है। आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो किस तरीके से विकास की योजनाएं जो है संचालित की जाएंगी, बड़ी घोषणाएं की गई हैं सीतारमण के द्वारा। यूपी में विकास लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में नई घोषणाओं से क्या उम्मीदें जनता की नजर आ रही है? देखिए, आईटी सेक्टर में सुधार किया जा रहा है। आईटी सेक्टर में मतलब उसपे सुधार की प्रक्रिया चल रही है और इसी द्वारा जो बताया गया कि आईटी सेक्टर में काफी कॉलेजेस और ये जो व्यवस्थाएं हैं वो बढ़ाई गई हैं। तो आईटी सेक्टर को लेकर हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनसे ही जान लेते हैं कि आईटी सेक्टर को लेकर जिस तरीके की व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही, कॉलेजेस बढ़ाए जा रहे हैं, व्यवस्थाएं हो रही हैं, तो उस पर आप क्या टिप्पणी? इसमें जो सरकार कर रही है वो अच्छा कदम है। आईटी क्षेत्र में युवाओं को और छात्रों को आगे आना चाहिए, उसके सरकार का प्रयास सराहनीय है। साफ तौर पर जनता का कहना है कि जो सुधार हो रहा है, सुधार ठीक है क्योंकि होना चाहिए, नई नीतियां आनी चाहिए क्योंकि देश नई लाने में आगे रहता है। प्रदेश या और भी राज्यों में जिस सीमा पे बढ़ी हुई है उसमें कम से कम बजट में सुधार होना चाहिए और बजट उस हिसाब से होना चाहिए जो आम जनता उसको समझ ले। चलिए राहुल जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, आपसे और भी जानकारी लेंगे। इसी विषय पर हमारी चर्चा यूं ही बरकरार रहेगी। सीधा हम रुक कर रहे हैं लोकसभा की ओर, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार बड़ी घोषणाएं कर रही हैं। देश को काफी उम्मीदें हैं इस बजट से। I propose to reduce the number of basic customs duty rates on goods other than textiles and agriculture from 21 to 13. As a result, there are minor changes in the basic custom duties, cesses and surcharges on some items including toys, bicycle, automobiles and naphtha. Green mobility. To avoid cascading of taxes on blended compressed natural gas, I propose to exempt excise duty on GST paid compressed biogas contained in it. To further provide impetus to green mobility, customs duty exemptions is being extended to import of capital goods and machinery required for manufacture of lithium-ion cells for batteries used in electrical vehicles as well. Electronics. As a result of various initiatives of the government, including phased manufacturing program, mobile phone production in India has increased from 5.8 crore units valued at about 18,900 crore in 2014-15 to 31 crore units valued at 2,75,000 crore in the last financial year. To further deepen domestic value addition in manufacturing of mobile phones, I propose to provide relief to customs duty. I propose to provide relief in customs duty on import of certain parts and inputs like camera lens and continue the concessional duty on lithium-ion cells for batteries for another year. Similarly, to promote value addition in manufacture of televisions, I propose to reduce the basic customs duty on parts of open cells of TV panels to 2.5%. Electrical, to rectify inversion of duty. चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अधर कुमार जी जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। धन्यवाद आयुषी।
हेलो। जी, सुन पा रहे हैं? हाँ आयुष जी, सुन रही हैं आप? जी, अधर जी, अगर हम बात करें पैन कार्ड की, तो पैन कार्ड अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। देखिए आयुष जी, मैं आपको दो चीजें स्पष्ट कर दूं। केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार पिछले 10 साल पूरे करने जा रही है, 1 साल कम रह गया है। और आपने सबसे पहले आधार को एक आइडेंटिटी बनाया, उसके बाद आप पैन कार्ड को आइडेंटिटी बना रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि आपकी योजनाएं कहाँ है। हम्म। वर्तमान में हालात ये है कि महंगाई से पूरा पब्लिक जूझ रही है, किसान परेशान है, युवक बेरोजगार हैं और महिलाएं परेशान है। छोटे उद्यमी जो लघु उद्योग की हम बात करते हैं, उस लघु उद्योग के मुद्दे पर सीतारमण जी ने कुछ नहीं बोला है। किसानों के मुद्दे पर हम बात करेंगे, वहां भी कुछ नहीं बोला है। अब आप पैन कार्ड को एक नेशनलिटी दे रहे हैं, आप आधार कार्ड को नेशनलिटी दे रहे हैं। मैं सरकार के विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जनता की जो मूलभूत समस्या है उन पर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। हम्म, बिल्कुल। जी और जी। अगर हम बात करें विकास की, अर्बन सेक्टर की ओर ज्यादा फोकस रहा है हमेशा से ही सभी सरकारों का, लेकिन इस बार हमने जैसा कि देखा है कि रूरल एरिया में भी विकास को लेकर गंगा बहाई गई है। रूरल एरिया की अगर हम बात करें, तो पहले का जमाना ऐसा होता था कि किसान का बेटा किसान बनता था, लेकिन आज की जो स्थिति है, अर्थव्यवस्था जो है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, जिसको देखते हुए किसान का बेटा अब किसान बनना नहीं चाहता। ये एक वजह रही है कि जिसकी वजह से किसानों की जो स्थिति है वो काफ़ी कमज़ोर थी। लेकिन इस बार के बजट में काफ़ी बदलाव किए गए हैं, काफ़ी उम्मीदें किसानों को है, क्योंकि कृषि स्टार्टअप युवाओं के लिए जिस तरीके से बात की जा रही है, तो कृषि के लिए कृषि कोष बनाया जा रहा है। क्या लगता है आपको, कृषि कोष से किसानों की उम्मीदें कितनी खरी उतर सकती है सरकार? मैं आपको बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर लैंड सरकार की पिछले 20 साल के अंदर 30 लॉस हुआ है। मतलब आपने जो विकास करते हैं, ग्रामीण अंचल को जो शहरीकरण हो रहा है, उससे आपकी एग्रीकल्चर लैंड खत्म हो रही है। और जब आपकी एग्रीकल्चर लैंड खत्म होगी तो उपज कम होगी। उपज कम होगी तो आज की डेट के अंदर आप अनाज के बारे में जब हम बात करते हैं, गेहूं को सरकार को 30 लाख टन गेहूं अपने कोटे से देना पड़ा, तब जाकर के गेहूं की कीमतें कंट्रोल हुई। और जो गेहूं पिछले सरकारों में लगभग बहुत सस्ता रहा था, वो 3435 रुपए प्रति किलो, 3435 प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ा। ग्रामीण विकास की आप बात करना चाहते हैं, ग्रामीण किसान का बेटा किसान नहीं बने, इस पर आप बात करना चाहते हैं। लेकिन जब लैंडिंग नहीं होगी आप पर, तो आप उपज की बात कहां करेंगे? और जब उपज की बात, क्योंकि भारत पूरी दुनिया के अंदर कृषि प्रधान देश है, अगर यहाँ उपज नहीं होगी तो आपकी अर्थव्यवस्था कहाँ चलेगी? आपके पास और है क्या जिस पर आप देश की अर्थव्यवस्था चलाना चाहते हैं? बिल्कुल। अधर है ना जी, इसे? लोकसभा चुनाव 2024 के चलते मोदी सरकार के लिए ये बजट काफी जरूरी और अहम हो गया है। अयुषी, बजट हर चुनाव से पहले आता है और हर चुनाव से पहले लोग रूहानी वादे किए जाते हैं। निर्मला सीतारमण जी के जो बजट है, मुझे नहीं लगता है कि अर्थशास्त्रियों के अनुसार उसको परिपूर्ण माना जाएगा, सहयोग माना जाएगा। हाँ, एक बजट तो ये जरूर है, एक उम्मीद की किरण है जो पिछले 10 साल से हमारे बीच में है। और अंतिम तबके के व्यक्ति, आप देखिए कि हिंदुस्तान में जो इकोनॉमिक रेट है, हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था की हम और अब बात करते हैं, हिंदुस्तान में जो गरीबी की रेखा की बात करते हैं, वो गरीबी रेखा 80% इंप्रूव हुई है। जो टोटल गरीबी रेखा, अगर हम 60 करोड़ लोग गरीब थे, आज की डेट में 80 करोड़ लोग गरीब हैं। आप बताइए विकास की बात कहाँ पर होगी? आपको चाहिए युवाओं के लिए नए सपने सजोना, उन युवाओं को रोजगार की व्यवस्था करना। और जब उन युवाओं पे रोजगार नहीं है, सपने नहीं है, उनका साकार नहीं हो रहा है, एजुकेशनल सेक्टर आपका डंप हो रहा है। एजुकेशन के नाम पर नई शिक्षा नीति आपने लागू करी, नई शिक्षा नीति लागू करने, आप देखिए उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। आखिर ये व्यवस्थाएं सुधारने के लिए एक लंबा समय चाहिए था, और क्योंकि आप लगातार वादे और दावे करते रहे और उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाए। यही एग्रीकल्चर लैंड का है, एग्रीकल्चर लैंड आपकी खत्म हो रही है। आप देखिए पहाड़ों पर पट रहे हैं, गिर रहे हैं, जो आपकी प्राकृतिक सौंदर्य सब वो खत्म हो रहा है। आप उसको रोकना चाहिए, उसको रोकने के साथ आपको रोजगार के साधन जुटाने होंगे।
और रोजगार जब तक आपके पास वहां पर नहीं होगा तब तक आपके विकास के मुद्दे का, आपके बजट के किसी भी विकल्प का कोई मुद्दा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल। और ब्याज की अगर हम बात करें तो राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त कर्जा दिया जाएगा। आयुषी, भारत पहले से इतना कर्जे में है। आप अगर रेशो देखेंगे तो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति और पिछले 10 साल के अंदर कर्जे का जो रेशो है वो 1.5 से 3 गुना बढ़ा है। जब आप कर्जे पर देना तो चाहते हैं लेकिन आपका कोर्स तो होना चाहिए आप पे। इकोनॉमिक जनरेट कहां से कर रहे हैं आप कर्जा दे सकते हैं, कर्जे का रेशो बढ़े, लेकिन जनरेशन इकोनॉमिक जनरेट करना ही पड़ेगा और इकोनॉमिक जनरेट करने के आप पर कोई साधन नहीं है, आपकी ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है। और कारण कि भारत सरकार ने घाटे को पूरा करने के लिए, ये मुझे कहने में थोड़ा सा अफसोस भी है कि जो सरकारी एजेंसी है, सरकारी उपक्रम है, उनको आप बेच रहे हैं। उनसे आप अपना सरकार का जो रेशो है उसको चेंज करना चाहती हैं। आपको उन्हें नहीं बेचना है, आपको सही मायने में नए उपक्रम बनाने हैं, नए ऐसे सौदे करने हैं, नए ऐसे समझौते करने हैं दुनिया भर से जिसमें आपको लाभ हो। बिल्कुल। और शिक्षा की अगर हम बात करें, आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो फंडिंग है वो बढ़ा दी गई है। महिलाओं के ऊपर विशेष फोकस रहा है सरकार का, जिस तरीके से हमने कल देखा कि पीएम मोदी के द्वारा जो अहम बातें की गई थी कि देश को मुख्य रूप से महिलाएं चला रही हैं और देश के विकास में महिलाओं का बहुत बड़ी भागीदारी रही है। तो महिलाओं के लिए भी इस बजट में काफ़ी सारे प्रावधान किए गए हैं। कई योजनाएं जो है वो सुचारू रूप से चलाई जाएंगी। सरकार का विशेष ध्यान महिलाओं पर भी होगा। आयुषी, जिस पार्लियामेंट के अंदर 33% महिला आरक्षण पर चर्चा नहीं हो पाई, जिस पार्लियामेंट के अंदर 33% आरक्षण जो महिलाओं की एक मांग थी उसको पूरा नहीं किया जा सका, और उस हिंदुस्तान के अंदर जहां आप बात करते हैं महिलाओं की, हिंदुस्तान की महिलाओं की स्थिति कल भी दयनीय थी, आज भी दयनीय है। हिंदुस्तान में हम और आप एक बड़े शहरों में, महानगरों में रहते हैं, वहां के अगर हालात छोड़ दीजिए तो गांव के अंतिम छोर की सरकार में जब महिला काबिज होती है उसका कार्यकाल महिला पूरा नहीं करती है, उस महिला का पति, उसका भाई या उसका बेटा चलाता है। महिलाओं को सम्मान, महिलाओं के हित की रक्षा आप जब कर सकते हैं जब महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी दें। और महिलाओं को ये कहना भी जरूरी है कि 33% महिला आरक्षण का जो बिल है वो आज तक पास क्यों नहीं हो पा रहा है। अब महिलाओं के साथ नाइंसाफी की बात करती है, योजनाएं कागजों पे बनती है, कागजों पे इम्प्लीमेशन होता है, कल कदम पूरी होती है। यही कारण है कि भारत आज भी वहीं की वहीं रुका हुआ है। शिक्षा के मुद्दे पे आप बात करना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में सरकारी शिक्षा की दयनीय हालत पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। ये तय है कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में शिक्षा के स्तर को बढ़ाया है, लेकिन उसका आप जो फार्मूला है वो और राज्यों में लागू करिए। आपकी भारत सरकार की सरकारी शिक्षा इतनी प्रभावशाली होनी चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन के लिए बच्चा नहीं जाए। आईटी सेक्टर की आप बात करती हैं, आईटी सेक्टर के लिए आप सारी व्यवस्थाएं कर रही हैं, लेकिन आईटी सेक्टर में रोजगार के साधन तो जुटाइए। रोजगार कहां से मिलेगा? आप आईटी सेक्टर में पढ़ ले रहा हूँ, सब कुछ चला रहे, रोजगार कहाँ है? चलिए, तो हमारे साथ इस पूरी जानकारी पे चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अधर जी जुड़े हुए थे जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम लगातार बात कर रहे हैं बजट को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं युवाओं के लिए। इस वक्त बड़ी खुशखबरी इसीलिए भी है क्योंकि 2023 में वे सभी युवा जो नया फ़ोन खरीदने की उम्मीदें लगाए बैठे थे उनके लिए खुशखबरी और राहत की बात यह है कि टीवी और मोबाइल अब सस्ते होने वाले हैं। जी हाँ, टीवी के साथ ही मोबाइल की कीमतों में भारी गिरावट देखी जाएगी। काफी जल्द सस्ते हो जाएंगे मोबाइल। Honorable Speaker, sir, there are a number of लगातार की जा रही relating हैं। to आपको बता दें कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी वित्त मंत्री के द्वारा बड़ा ऐलान किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़े ऐलान किए। For the purpose of housing, development of cities, towns and villages, and regulating and developing an activity or matter is proposed to be exempted from income tax. Other major measures in this direction are removing the minimum threshold of 10,000 for TDS
and clarifying taxability relating to online gaming, not treating conversion of gold into electronic gold receipts and vice versa as capital gains, reducing the TDS rate from 30% to 20% on taxable portion of EPF withdrawals in non-PAN cases, and taxation on income for market-linked debentures. Other major proposals in the finance bill relate to the following: extension of period of tax benefits to funds relocating to IFSC, GIFT City till 31/3/2025, decriminalization under Section 276A of the Income Tax Act, allowing carry forward of losses on strategic disinvestment, including that of IDBI Bank, and providing EEE status to Agnivir Fund. Personal income tax. Now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle-class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. My fourth announcement in personal income tax
is regarding the highest tax rate, which in our country is 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge. I propose to reduce the highest surcharge rate from 37% to 25% in the new tax regime. This would result in reduction of the maximum rate. This would result in the reduction of the maximum tax rate to 39%. Lastly, the limit of 3 lakh rupees for tax exemption on leave encashment on retirement of non-government salaried employees was last fixed in the year 2002, when the highest basic pay in the government was only 30,000 rupees per month. In line with the increase in the government salaries, I am proposing to increase this limit to 25 lakh rupees. We are also making the new income tax regime as the default tax regime. However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 38,000 crore to 37,000 crore in direct taxes and rupees 1,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 3,000 crore will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 35,000 crores annually. Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this August House. आइटम नंबर 1 माननीय आइटम नंबर 2 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी. Sir, with your permission, I lay on the table of the following statements. Under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility Budget Management Act 2003, 1. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई गई है. आप बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन पलक से ले लें. आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसकी प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी. आइटम नंबर 3 माननीय मंत्री जी, वित्त मंत्री जी. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2023. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में. माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें. Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 2 फरवरी 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. तो बजट पेश किया गया वित्त मंत्री के द्वारा और अब भाषण को स्थगित कर दिया गया है अनिश्चितकाल के लिए. आपको बता दें कि टैक्स स्लैब की हम शुरू से ही बात कर रहे थे. टैक्स स्लैब को लेकर शुरू से ही बात की जा रही थी. इसको लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं. जी हां, टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव कर दिया गया है. यानी कि अब टीवी, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक वाहन सस्ते होंगे, तो वहीं सिगरेट की कीमतों में बढ़ावा
दिखाई देगा, सिगरेट की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। इसके अलावा टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब की जानकारी देते हुए बताया कि राहत देते हुए ऐलान किया गया है कि अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। बता दें कि पहले यह सीमा 5 लाख रुपए तय थी। और इसके साथ ही सिगरेट महंगी हो गई है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16% बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब सिगरेट अब महंगी हो जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी ऐलान किए गए हैं। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। इसके साथ ही युवाओं के लिए भी बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की जाएगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। और आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के लिए अगले 3 सालों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि इस दौरान आपको स्वास्थ्य सेवाओं में भी काफ़ी ज़्यादा अवसर देखने को मिले। आपको बता दें कि इस दौरान रिसर्च में आपको बता दें कि बढ़ावा देने की बात की गई है बजट में। साथ ही साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज को प्रस्तावित किया गया है कि 157 नर्सिंग कॉलेज पूरे देश भर में बनेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान मेडिकल में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने की बात की गई है। आपको बता दें कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने की इस बजट में पूरी बात की गई है। और साथ ही साथ 2047 तक एनीमिया खत्म करने का सरकार ने लक्ष्य तय किया है। आपको बता दें कि फार्मा सेक्टर में भी नई योजना बनाएगी सरकार, जिसके चलते आपको बता दें कि नई योजनाओं के चलते फार्मा इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं बड़े बदलाव में देखा जा सकता है। और दूसरी अगर बात करें रेलवे की, तो रेलवे को बड़ी सौगात मिली। आपको बता दें कि 2.4 लाख करोड़ रुपए का बजट रेलवे को पास किया गया है, जिसमें बड़े बड़े रेलवे प्रोजेक्ट शामिल होंगे और विकास के कार्यों पर काम किया जाएगा। साथ ही साथ अगर देश के किसानों की बात की जाए तो आपको बता दें कि देश के किसानों को डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे उनकी फसलों की पैदावार ज़्यादा बढ़ सके। आपको बता दें कि इस दौरान इस पूरी प्रोसेस के लिए एक विशेष फंड सरकार द्वारा बनाया जाएगा। साथ ही साथ देश में मोटे अनाज को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि खेती किसानों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार अलग अलग प्रोजेक्ट लेके आएगी। साथ ही साथ नेचुरल फार्मिंग पर सरकार का ज़्यादा फोकस रहेगा। आपको बता दें कि तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कई बड़ी घोषणाएं, कई बड़े ऐलान किए गए हैं। टैक्स स्लैब में भी बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। सिगरेट की कीमतों में उछाल देखा जाएगा, तो वहीं टीवी और इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतों में गिरावट देखी जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विवास जी जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। जी जी विवास जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं बजट को लेकर, जितनी उम्मीदें आम जनता को है उतनी ही आईटी सेक्टर्स के लोगों को भी हैं, क्योंकि कई बड़े बदलाव टैक्स स्लैब में किए गए हैं। कीमतों में उछाल देखा जा रहा है सिगरेट की, तो वहीं जो दूसरे सामान हैं, जैसे कि जो लोग 2023 में नए मोबाइल खरीदने की स्कीम बना रहे थे, उनके लिए राहत की खबर है, क्योंकि टीवी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक वाहन और सभी जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें अब घट जाएंगी। क्या कहेंगे?
जी, सुन पा रहे हैं? हाँ, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी, बिल्कुल सर। मुझे सुन पा रहे हैं आप? आपकी आवाज कम आ रही है थोड़ी। जी, विवास जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं आप? ऑडियो लेवल बहुत कम है। जी, विवास जी, क्या आप मुझे अब सुन पा रहे हैं? जी, जी। जी, विवास जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं टैक्स स्लैब में काफ़ी बड़ा बदलाव देखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कीमतें कम होंगी, टीवी समेत इलेक्ट्रॉनिक वाहन की कीमतें कम होगी, तो वहीं सिगरेट के दाम में बढ़ोतरी देखी जाएगी। जी, मैं ये समझता हूँ कि सरकार अभी कोरोना के जो दौर था पिछले 3 साल में, उससे लगभग उभरने की स्थिति में है और विकास को गति देने के लिए जो बुनियादी स्तर पर प्रयास होने चाहिए, उसी दिशा को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया है। आप देखिए कि उद्योगों को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है और अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण में जो संकेत मिले हैं, वो ये कि 6.5% का एक विकास का अनुमान है, जो अगले वित्तीय वर्ष में 7% तक भी जा सकता है। तो ये भारत जैसे बड़े देश के लिए ये संख्या काफ़ी उत्साहवर्धक है और अभी जबकि पिछला 3 साल हमने वैक्सीन में बहुत बड़ा एक अमाउंट खर्च किया, फिर एक बड़ी आबादी को मुफ्त में अनाज भी दिया गया। ऐसे में जो सरकार के पास जो धन का संचय है, वो जितना बचा है और जितना रिसोर्स उपलब्ध है, उसके आधार पर मैं समझता हूँ कि एक तो एमएसएमई इंडस्ट्री को और ये जो मोबाइल के जो पार्ट्स में कस्टम ड्यूटी को हटाने या कम करने की जो बात हो रही है, ये एक सकारात्मक प्रयास है मैं समझता हूँ। जी। बिल्कुल। विवास जी, इस बजट से जितनी उम्मीदें युवाओं को है उतनी ही वरिष्ठ नागरिकों को भी थी। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। बजट की अगर हम बात करें तो वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा बढ़ा दी गई है। पहले 4.5 लाख से अब 9 लाख कर दी गई है। इस पर क्या कहेंगे? ये भी अच्छा है कि देखिए 60 इयर्स या 62 इयर्स के बहुत लोग जो काम कर रहे होते हैं, अभी तो कई नौकरियों में 65 इयर्स तक भी जॉब है, तो उनकी भी जो सैलरी होती है वो करीब-करीब उस लिमिट तक पहुंच जाती है जहां उनको टैक्स पेयर की श्रेणी में आना होता है। यदि हम सीनियर सिटीजन को इतनी छूट दे रहे हैं, वो 9 लाख रुपए तक की छूट है, तो मैं समझता हूँ इससे एक बड़ा वर्ग प्रभावित होगा और एक बड़े वर्ग को इसका लाभ मिलेगा। तो ये भी अच्छा है। हालांकि जो मांग हो रही थी वो ये भी हो रही थी कि जो सामान्य जो टैक्स पेयर है, जो अंडर 60 है, उनको अगर करीब 5 या 6 लाख तक की छूट मिले, तो बहुत से लोग और भी होंगे जो इस दायरे से लाभान्वित होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो शायद सरकार जब बजट पे चर्चा हो जाएगी और किसी दूसरे दल की तरफ से ये सुझाव या ये मांग उठेगी, तो मुझे लगता है सरकार इस पर भी विचार कर सकती है कि जो नॉर्मल टैक्स पेयर हैं, उनको भी एक छूट की लिमिट बढ़नी चाहिए। जी। बिल्कुल। अगले साल लोकसभा चुनाव है, वहीं इस साल के अंतिम की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश को कौन-कौन सी बड़ी सौगातें बजट में मिल सकती हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि चुनावी साल है, लिहाजा बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान होना लाजमी है। देखिए ऐसे मध्य प्रदेश को ध्यान में रख के तो अलग से अभी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी गरीबों को उन्होंने जोड़ने की पहल की है कि इससे कस्बों में रहने वाले वो जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, उनको अपना घर बनाने के लिए 2.5 से 3 लाख तक की छूट मिलेगी। ये एक अच्छी पहल है। फिर मैं समझता हूँ कि यूथ को टारगेट करके भी कुछ किया जा रहा है कि वो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, उसमें भी युवाओं को भी शामिल किया जाएगा। तो ये पूरे देश में बड़े स्तर पर एक मास लेवल पे इस योजना का, इस प्रयास का लाभ लोगों को मिलेगा। एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना और एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में यूथ को भी जोड़ने की पहल। तो मैं समझता हूँ कि इससे एक बड़ा मतदाता वर्ग सरकार से जुड़ सकता है या इसका जो लॉन्ग रन में जो असर होगा, वो आपको शायद चुनाव में देखने को मिले। जी। बिल्कुल। और महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं के लिए सम्मान बचत पत्र की योजना की शुरुआत की जानी है, क्योंकि महिलाओं के लिए जितना ज़रूरी रोज़गार है, मेरा ख्याल है रोज़गार के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें मौका मिले ताकि वो भी आगे आकर जो है देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे सके। आपने देखिए हमारे यहाँ
जो महिलाएं होती हैं वो जन्मजात प्रबंधक और मैनेजर होती हैं। उनको अगर 1,000 रुपये दिया जाए तो 1,000 में भी वो बचत करती हैं, और उन्हें 5,000 दिया जाए तो 5,000 में भी कुछ बचत करती हैं। जो उनके अंदर प्रवृत्ति है भारतीय समाज में, आप देखिए जब 2008 में पूरी दुनिया में ब्राजील, मेक्सिको, अर्जेंटीना में बहुत बड़ी मंदी आई थी, तब हमारा देश उससे बहुत प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि वो जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं या जो निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं, वहाँ महिलाओं ने जो बचत रखी, जो श्रमिक वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उसने जो बचत रखी, उसी से बहुसंख्य आबादी उस मंदी से अप्रभावित रही। और आज ये महिलाएं जो पैसा बचा के रखती हैं, कोरोना काल में आपने देखा उन्होंने जो बचत करके पैसे रखे थे, उससे बहुत दिनों तक जब लोगों की नौकरी नहीं थी, काम नहीं था, महिलाओं ने घर चलाए हैं और कुछ संभाल के रखा है। उनके पास पैसा अगर वो बचत पत्र में निवेश होता है तो मैं समझता हूँ कि सरकार के पास ये पैसा मिले, और वो पैसा सरकार बड़े रूप में जब इकट्ठा कर लेगी तो उसका बड़ी योजना में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो सकता है। तो महिलाओं को भी देश के हित में अपने फंड का एक कंट्रीब्यूशन करने का मिलेगा। वो बचत तो करती ही हैं, अब उनके बचत देश के ही काम है। आप इस नजरिए से देख सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं एक बड़े युवा वर्ग की, तो कई सारी आईटी कंपनीज की अगर हम बात करें, गूगल की बात करें, अमेजॉन की बात करें, ये सारी जो बड़ी कंपनियां हैं बड़े तौर पर अपने जो मुलाजिम हैं अपने कर्मचारियों को बर्खास्त कर रही हैं। ऐसे में जो युवा हैं उनके लिए नौकरी की जो समय सीमा है वो कम कर दी गई है, साथ ही कई लोगों को बिना नोटिस निकाल दिया जा रहा है बड़ी कंपनी से। ऐसे में रोजगार एक बड़ा सवाल सरकार के सामने आ सकता है, क्योंकि ऐसे में रोजगार की कमी साफ तौर पर देखी जाएगी। रूरल एरिया की अगर हम बात करें तो वहां पर रोजगार की कोई खास व्यवस्था अभी तक नहीं थी, लेकिन बजट की अगर हम बात करें तो बजट में काफी प्रोग्राम की बात की गई है, बड़े ऐलान किए गए हैं। क्या लगता है आपको? मैं समझता हूँ कि देखिए जब से ये जो हम देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर में एक जॉब का क्रंच है और बड़े पैमाने पे नौकरी से लोगों को हटाया जा रहा है, तो भारत सरकार को ये देखना तो पड़ेगा कि उसके जो प्रतिभाशाली हैं, जो देश विदेश में काम कर रहे हैं, अगर वो नौकरी से अलग हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं, तो उन्हें देश लौटने पर कोई स्टार्टअप के लिए एक शुरू करना होता है, जो बूस्ट जरूरी है। सरकार अगर वो दे, ये जो प्रतिभाशाली लोग हैं जो अपने देश में आके अगर काम करना चाहते हैं, अगर उन्हें मौका मिले, एक थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, तो ऐसे लोग जो जॉबलेस हो जाएंगे, चाहे कहीं दूसरे देशों में काम करते हों, काम करते, मैं समझता हूँ कि प्रतिभा का न सिर्फ उपयोग स्वरोजगार, बल्कि वो एक बेरोजगार युवा जो देश लौट कर आएगा, वो अपने साथ 30, 40, 50 लोगों को रोजगार दे भी सकता है। ये इस तरह से हम इसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह सकते हैं कि ये एक बात है। तो मैं समझता हूँ सरकार को इस दिशा में कुछ सोचना चाहिए। जी चलिए, तो सर यहाँ पर इस पूरी चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए थे, लगातार उन्होंने हमारे साथ जानकारी साझा की, बजट को किस तरीके से देखते हैं ये भी उन्होंने हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। लगातार आप देख रहे हैं खबर भारत 360 पर। बजट को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, लोगों की क्या उम्मीदें हैं और किस तरीके से सरकार जो है जनता की उम्मीदों पर खरा उतरती है, ये सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं खबर भारत 360 पर। चलिए, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बजट में किसको मिलेगी उड़ान, स्टूडेंट को कितना मिलेगा फायदा, इनकम टैक्स में राहत स्लैब में बदलाव कर दिए गए हैं। जी हां, बजट में किसको मिलेगी उड़ान, स्टूडेंट, बेरोजगार, मिडिल क्लास। एलईडी टीवी अब सस्ती होने वाली है, खिलौने, ऑटोमोबाइल, वाहन सस्ते होंगे, बायोगैस से जुड़ी चीजें भी सस्ती होने वाली है। जी हाँ, गोल्ड सिल्वर पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है, विदेश से आने वाली चांदी महंगी हो गई है, एमएसएमई टैक्स में दी जाएगी छूट, 7 लाख तक आय पर कोई टैक्स, इनकम टैक्स में राहत स्लैब में बदलाव। तो आपको बता दें कि इनकम टैक्स में राहत स्लैब में बदलाव हुआ है। 3 से 6 लाख कमाई पर 5% टैक्स लगेगा, वहीं 6 से 9 लाख पर कमाई पर 10% का टैक्स लगाया जाएगा। आपको बता दें कि 9 से 5 लाख रुपए पर 15% टैक्स बढ़ गया है, वहीं 12 से 15 लाख पर 20% टैक्स
सरकार अब लगाएगी। आपको बता दें कि हेल्थ ICMR में लैब की संख्या देश भर में बढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ 157 नर्सिंग कॉलेज नए देश में बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि चिकित्सा क्षेत्र में बढ़ावा पर फोकस किया जा रहा है, जिसके चलते 2037 तक एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं खबर भारत 360 के माध्यम से, जहां पर बजट में काफी उम्मीदें थी जनता की, और जनता की उम्मीदों पर साफ तौर पर खरा उतरती भी दिखाई दे रही है सरकार। आपको बता दें कि 3 से 6 लाख कमाई पर 5% टैक्स होगा, तो वहीं 6 से 9 लाख कमाई पर 10% टैक्स होगा। 9 से 12 लाख पर 15%, तो वहीं 12 से 15 लाख पर 20% टैक्स देना होगा। इसके अलावा हेल्थ ICMR लैब की संख्या देश भर में बढ़ा दी जाएगी। जी हां, 157 नर्सिंग कॉलेज बनाए जाने वाले हैं, जिसको लेकर चिकित्सा क्षेत्र में भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर तो आपको बता दें कि इनकम टैक्स में राहत स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके चलते 3 से 6 लाख कमाई करने वालों को 5% टैक्स देना होगा। वहीं 6 से 9 लाख कमाई करने वालों को 10% टैक्स देना होगा। बात की जाए 9 से 12 लाख पर 15% सरकार टैक्स लेगी, वहीं 12 से 15 लाख पर सरकार 20% टैक्स लेगी। तो आपको बता दें कि बजट में कई नए बदलाव किए गए थे, जिसके चलते कई सौगातें देश में आपको नहीं मिलने वाली। आपको बता दें कि मेडिकल की अगर बात करें तो रिसर्च को सरकार की तरफ से बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ इस दौरान 157 नए नर्सिंग कॉलेज पूरे देश भर में खोले जाएंगे। आपको बता दें कि मेडिकल में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि प्राइवेटाइजेशन को सरकार अब बढ़ावा देने वाली है, जिसके चलते 2037 तक एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य सरकार ने बनाया हुआ है। आपको बता दें कि इस दौरान फार्मा सेक्टर पर भी नई योजना बनाई जाएंगी, जिसके चलते कहीं ना कहीं मेडिकल सेक्टर को एक बड़ी उड़ान मिल सकती है। आपको बता दें कि अगर जिस तरीके से बजट पेश किया गया है, वहाँ पर किसानों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है, क्योंकि किसानों को अब डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वह अपनी फसलों को और बेहतर तरीके से कर सकेंगे। साथ ही साथ इस दौरान पूरी योजना के लिए एक विशेष फंड सरकार द्वारा रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने मोटे अनाज को बढ़ाने पर अपना ज़्यादा जोर जाहिर किया है। साथ ही साथ खेती में स्टार्टअप को बढ़ाने को लेकर सरकार का फोकस रहेगा। आपको बता दें कि इस दौरान नेचुरल फार्मिंग पर सरकार अपना फोकस जमाई बैठी है, जिसके चलते कहीं ना कहीं किसानों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। यहाँ पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने राहत देते हुए ऐलान किया है कि अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। बता दें कि पहले ये सीमा 5 लाख रुपए तक की थी। तो 3 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योगों को भी कर में छूट दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 3 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को कर में छूट दी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतरती नजर आ रहा है बजट। महिला सम्मान बचत पत्र की योजना की भी शुरुआत की जाएगी। कई बड़े बदलाव टैक्स स्लैब में भी किए गए हैं। राहत मिलती दिख रही है जनता को। तो उस वक्त की बड़ी जहां पर इनकम टैक्स में राहत स्लैब में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसका सीधा फायदा जनता को मिलता नजर आएगा। तो बजट में बड़ी राहत मिलेगी। खिलौने, ऑटोमोबाइल वाहन सस्ते होंगे, तो वहीं बायोगैस से जुड़ी चीज़ें सस्ती होने वाली है। गोल्ड सिल्वर पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी है, तो वहीं विदेश से आने वाली चांदी महंगी होगी। MSME टैक्स में दी जाएगी छूट। 7 लाख तक आय पर कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। इनकम टैक्स में भी राहत स्लैब में बड़े बदलाव। वहीं आपको बता दें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की जाएगी, जिसके चलते सीतारमण ने कहा है कि युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए अलग राज्यों में
30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 सालों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की इस दौरान भर्ती की जाएगी। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण किए जाएंगे। आपको बता दें कि बजट में काफी ज्यादा सौगातें मिली, जिसके चलते महिला सम्मान बचत पत्र योजना की भी इस दौरान सरकार ने शुरुआत की है। आपको बता दें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी और इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। और बजट 2023 में घोषणा की गई है बड़ी, 7 लाख का आय तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो वहीं बजट 2023 की खास बात यह भी रही कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ऑटोमोबाइल, खिलौने और देसी मोबाइल सस्ते करने की घोषणा की गई है। तो वहीं महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बड़ी राहत बजट में रखी गई है। तो आपको बता दें साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा मिलेगा। तो बजट 2023 में कई बड़ी राहतें मिलती दिखाई दे रही है। महिलाओं के साथ ही वरिष्ठ नागरिकों का भी पूरा ख्याल रखा गया है। टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कीमतों में भी कमी देखी जाएगी। जी हाँ, टीवी और मोबाइल समेत कई इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की कीमतों में कमी देखी जाएगी। हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए छत्तीसगढ़ से संवाददाता जुड़े हैं। मोहम्मद साजिद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं जनता को कितने राहत मिलती दिखाई दे रही है, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरती दिखाई दे रही है सरकार, क्या उम्मीद है जनता की? चूंकि ये चुनावी साल होने वाला है छत्तीसगढ़ के हिसाब से भी और केंद्र के हिसाब से भी, तो जनता की इससे कई ज्यादा उम्मीदें हैं। और हमने हाल ही में देखा है कि कई चीजों में महंगाई काफी ज्यादा बढ़ती हुई जनता की नजर में देखी जा रही है। तो इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से एक सुहावना बजट पेश किया जा सकता है, जिसको हमने देखा कि एजुकेशन में 154 के करीब मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। और जो हाल ही में हमने देखा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, तो उसका एक जो अलग ऑप्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ से सरकार और जनता दोनों का रुझान देखा जा रहा है। तो इसके लिए जो भी टैक्सेस जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को लेकर, इसके टैक्सें कम की जा रही है जो इसके लिए। और साथ ही जो आम और मध्यम वर्गीय लोग होते हैं उनके जो टैक्स स्लैब जो कि हर बार देखा जाता है, बजट से उम्मीदों के साथ साथ लोगों में एक डर, एक दहशत भी देखे जाते हैं कि इस बार इनके जेब पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। तो इसको लेकर एक सीतारमण ने एक टैक्स का स्लैब सेट किया है, जिसमें कि 7 लाख तक जो भी इनकम होगा उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा और 7 से 12 लाख तक जो होगा उस पर 10% का टैक्स आएगा। इस तरह से जिस तरह से इनकम बढ़ती जाएगी और जो कि 15 से 15 लाख तक के इनकम पर 20% का टैक्स क्या रखा जा रहा है टैक्स का स्लैब को, तो इसको लेकर एक राहत की बात तो कही जा रही है, राहत तो रहेगी ही। और साथ ही अभी पूरी तरह से बजट सामने आए नहीं है, तो इसको लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया होनी चाहिए, तो देखा जाएगा। और खासकर एक युवा वर्ग जो कि अभी रोजगार को लेकर एक सभी पूरे देश में और साथ ही छत्तीसगढ़ में भी काफी एक लामबंद दिखाई दे रहा है युवा पीढ़ी, तो इनको रोजगार को लेकर एक बड़े घोषणाएं की जा सकती है इस बजट में। और जो कि हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे यहाँ पर, कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे जो कि रायपुर राजधानी में और इकट्ठा होते हैं, यहाँ पर भर्तियां होती रहती है, तो हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। आप युवा पीढ़ी को प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधि करते हैं, तो आप बताना चाहेंगे कि आज जो बजट पेश हो रहा है केंद्र की तरफ से, उसको लेकर आप कैसी उम्मीदें रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे, सरकार से कैसी उम्मीदें रखते हैं आप? सरकार से उम्मीद वही है सर, अब का है ना, जनता बहुत बेरोजगार है यहाँ, है ना। और छत्तीसगढ़ में चिट फंड कंपनी चलत रही से, जिसमें 160 कंपनी के नाम दर्शाए गए है ना।
और पैसा रिटर्न नहीं करे है। तो भाई कोई भी सरकार है लाइसेंस देते सर, तब ऑफिस खोल के बैठे रही से सब, और में रोजगार मेला लगे रही से। रोजगार मेला में जनता लाना सिर्फ तो अभी शासन प्रदेश देते। सरकार तो इसको बजट तैयार करेगी, जो केंद्र सरकार है उसका जो प्रभाव होता है राज्य सरकार के बजट पर भी। तो अब केंद्र से जो मोदी सरकार जो हम बात करते हैं, मोदी सरकार से किस तरह की उम्मीद करते हैं, चाहे रेल बजट हो, चाहे रोजगार हो, चाहे अध्ययन शिक्षा को लेकर? रोजगार के लिए नीचे स्तर के लिए बहुत जरूरी है सर। कारण भाई हर आदमी आज के डेट में रोजमर्रा की जियत है सर। ठीक है, हम और कुछ लोगों से बात करते हैं। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? रोजगार को आपका नाम पहले बताएंगे। मैं गौतम। जी गौतम जी, आप क्या करते हैं? आपका कोई व्यापार है या फिर आप रोजगार के लिए आप सरकारी नौकरी पर ही आधारित है? क्या कहना चाहिए? मेरा व्यापार है और मेरी सरकार से तो इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि अभी लास्ट पैंडेमिक कोविड के बाद से भी अर्थव्यवस्था में इससे बहुत प्रभाव पड़ा है। और आज 8 साल हो गए करीब इनकम टैक्स में सरकार ने कोई छूट नहीं दी थी। इस बार कुछ उम्मीदें ज्यादा है सरकार से, और अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव है तो उसको मद्देनजर देखते हुए हमें छत्तीसगढ़ के लिए सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, चाहे रेल बजट को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य बजट को लेकर हो, या शिक्षा को बजट को लेकर हो। क्योंकि अभी प्रदेश में शिक्षा को लेकर जो स्तर है बहुत ही नीचे है। हमारा ये उम्मीद है कि सरकार शिक्षा के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। जी, जैसे कि हम देख रहे हैं और बजट आने वाला था, इसके पहले मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल ने भी काफी बयान दिए थे केंद्र सरकार को लेकर कि रेलगाड़ियों को रोका जा रहा है, या फिर कई सारी जो सब्सिडी जो केंद्र सरकार से कोयला की सब्सिडी होनी चाहिए, या फिर धान खरीदी को लेकर जो भी होनी चाहिए, इस तरह की बातें सीएम बघेल की तरफ से देखी जा रही थी। तो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से भी एक उम्मीद की जा रही है कि बजट में छत्तीसगढ़ राज्य को कुछ अच्छा मिले। और देखा जा रहा है कि 2023 में विधानसभा का चुनाव भी है, तो इसी को लेकर केंद्र सरकार के बजट का असर पूरी तरह से राज्य सरकार पर पड़ेगा, जिसको अभी हम 4 दिनों से देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने कैबिनेट के जो मंत्रियां होते हैं, जो अलग अलग जिनके विभाग है, सभी की बैठकें ले रहे हैं। तो जिनके आधार पर ये भी एक बजट तैयार करेंगे, तो एक खाका एक तरह से तैयार करेंगे, जिसका एक जो कि केंद्र के बजट पर भी आधारित हो सकता है। तो सीएम बघेल भी इसको लेकर इस बार काफी आशान्वित है कि केंद्र की बजट अगर सही तरीके से आती है तो उसको राज्य पर उसका क्या असर पड़ेगा। साजिद, अगर देश की हम बात करें तो सबसे ज्यादा युवा भारत में ही है। ऐसे में युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। युवा इस बजट को किस नजर से देखते हैं, ये मैं चाहूंगी कि आप वहां मौजूद लोगों से चर्चा करें, उनसे जाने युवाओं की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है बजट को लेकर। जी, युवाओं की तो उम्मीदें सामने ही है। जी, युवाओं की तो उम्मीदें बजट से लगी हुई है, क्योंकि हम देख रहे देश का दुनिया में सबसे ज्यादा युवाएं हमारे भारत देश में ही होती है। तो किसी भी साल का जब बजट किया जाता है तो युवाओं को काफी ज्यादा उम्मीदें होती है, चाहे रोजगार को लेकर हो, चाहे बिजनेस को लेकर, क्योंकि युवाएं जो सरकारी नौकरियां नहीं पा पाते हैं, वो अपने चूंकि प्रधानमंत्री मोदी जी भी कह रहे हैं कि स्वावलंबी बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, तो इसको लेकर युवाओं को लेकर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। जी, युवाओं को लेकर इस तरह से बजट किस तरह से देखना चाहते हैं? ठीक है, युवाओं की बात तो हम करते हैं, साथ ही जो कुछ सीनियर सिटीजन भी है जिन्होंने काफी सारे बजट अपनी जिंदगी में देखे हुए हैं, पिछले बजटों से तुलना अगर इस बार के बजटों को करते हैं तो अभी किस तरह की उम्मीद इस बजट से करना चाहेंगे, आगे किस तरह देखना चाहेंगे, हम बात करें। सर, आप बजट में किस तरह देखना चाहेंगे? तो पहले बताएं कि आप क्या करते क्या है आपका? मेरा नाम अनिल पाठक है, मैं पेंशनर कल्याण संघ का प्रांतीय महामंत्री रायपुर में। और बजट से बहुत उम्मीद है सभी को, और वो यही चाहते हैं कि बजट अगर पेंशनरों के हित में, नागरिकों के हित में, युवाओं के हित में और छोटे तबके के लोगों के हित में अगर कार्रवाई हो और उसका लाभ अधिक से अधिक मिल सके, ये आशा अपेक्षा शासन से चाहते हैं। जी, अभी आपका टैक्स कटता है? जी,
टैक्स स्लैब से अभी खुश है इस बार आप? टैक्स के लिए हम चाहते हैं पेंशनरों को टैक्स से मुक्त मिलना चाहिए। और पेंशनरों को जो अभी अदर स्टेट में 70 साल के बाद एक इंक्रीमेंट मिलती है, पेंशन में बढ़ोतरी होती है, वो लागू करना चाहिए शासन को। और पेंशनरों को बहुत सी समस्याएं हैं, महंगाई भत्ता के संबंध में भी है, और महंगाई भत्ता छत्तीसगढ़ शासन दे नहीं रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शासन में विरोध है, धारा 49 के कारण से बहुत सी परेशानियां आ रही है। केंद्र से आप किस तरह की डिमांड करना चाहेंगे? केंद्र से ये हम डिमांड करना चाह रहे हैं कि 65 साल के उम्र के बाद 5% के बढ़ाते कि 10% बढ़ोतरी किया जाए, और पेंशनरों को चिकित्सा से संबंधित लाभ दिया जाए, और पेंशनरों को वायु में, ट्रेन में सफर करने में उनको छूट मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य संबंधित भी छूट चाहते हैं। ये पेंशनरों की मांग है, डिमांड है, और आज से नहीं, हम राज्य स्तरीय से भी मांग उठाए हैं। 15 मांग है हमारी, जो केंद्र का कर दे तो हम लोगों को 5 लाभ लाख मिल की जाएगा। अब 9 लाख की गई है। क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? साजिद सुन पा रहे हैं? जी, जो पहले टैक्स स्लैब था उसमें सीनियर सिटीजन को 4.5 लाख तक छूट दी जाती थी, जिसको अभी 9 लाख तक बढ़ा दिया गया, यानी कि 9 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नहीं, हम ये चाहते हैं पेंशनर से इनकम टैक्स का स्लैब रहना नहीं चाहिए, इनकम टैक्स तो पूरी छूट होनी चाहिए। वही पेंशनर की जो पेंशन है वो इनकम टैक्स नहीं है, इसलिए उसको टोटली छूट देना चाहिए। जी, इनका कहना है कि जो टैक्स जो होता है स्लैब होता है उसमें पेंशनर्स को पूरी तरह छूट दी जानी चाहिए, और चूंकि ये किसी तरह का इनकम नहीं होता है, उन्होंने जिंदगी भर काम किया तो उसको लेकर उन्हें एक पेंशन दी जाती है, तो इस पर किसी तरह का टैक्स होना नहीं चाहिए। तो इनका कहना यह है। साथ ही सर का यह भी कहना है कि जो भी यात्राएं की जाती है, चाहे वायु यात्रा हो चाहे रेल यात्रा हो, इसमें पेंशनरों को जो सीनियर सिटीजन को जो अभी छूट दी जाती है तो उसको बढ़ोतरी की जानी चाहिए। और साथ ही स्वास्थ्य को लेकर जो होता है तो उसमें भी केंद्र सरकार के द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही राज्य सरकार से भी उम्मीदें जता रहे हैं। जी, चलिए, तो यहाँ पर इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से मोहम्मद साजिद जुड़े हुए थे, जिन्होंने आसपास मौजूद लोगों से चर्चा की बजट को लेकर, जनता की क्या उम्मीद है बजट 2023 को लेकर। तो बड़ी घोषणाएं केंद्रीय निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई हैं, जनता की उम्मीदों पर खरा उतर रही है सरकार। तो बजट 2023 में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें या फिर वरिष्ठ नागरिकों की बात करें, जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरती दिखाई दे रही है मोदी सरकार। वही बात करें स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर किसानों की, तो इस बार बजट में सभी को राहत मिली है। फिलहाल आज बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।